Hello, welcome to the YouTube channel Botany for All. In today's video, I'm going to discuss about the anomalous secondary growth in the Tinospora cordifolia. Prior to that, in my previous videos, I have also discussed about this phenomena that what is the anomalous secondary growth. You can watch the recorded lectures there that what exactly is anomalous secondary growth. Generally, it is also called the abnormal secondary growth. The abnormal secondary growth. Secondary growth, which is a feature of some plants, not all the plants. The secondary growth refers to the increase in thickness particularly. So this secondary growth is generally normal. In the normal secondary growth, the secondary xylem and secondary phloem. These two secondary vascular tissues are produced by a meristematic tissue which is known as the cambium. कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम एज वेल एज सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करता है इन द सेकेंडरी ग्रोथ विच इज नॉर्मल. But there are few plants which also shows the anomalous or the abnormal secondary growth. That abnormality may lies also in the primary structure and more commonly in the secondary structure. Abnormality या anomalous जो conditions होती हैं वो primary structure में भी देखी जा सकती हैं as well as secondary structure में भी. Secondary structure में कैम्बियम की activity भी abnormal हो सकती है as well as कैम्बियम की पोजीशन एबनॉर्मल हो सकती है. फॉर एग्जांपल मोनोकोट्स की बात करें, मोनोकोट्स में अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती है सो दैट ग्रोथ विल बी कंसीडर्ड एज एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज नेचुरली द कैम्बियम इज एब्सेंट इन मोनोकोट्स. द कैम्बियम इज एब्सेंट in monocots, but still there are some monocots like Dracaena in which the secondary growth occurs. So that is particularly the anomalous secondary growth or the abnormal secondary growth. So today particularly I am going to discuss about a plant that is Tinospora cordifolia. The common name for this plant is Giloe. It is a medicinal plant. It is a medicinal plant which is very common and very common, oftenly used in the treatment of the dengue fever as well as for boosting the immunity. These days in the COVID-19 situation, this plant is also common. That is the Giloe plant, which is a medicinal plant, and the botanical name is Tinospora cordifolia. So if I look at the picture of the Giloe plant or the Tinospora cordifolia, let me give you a look of the plant. These are the leaves of the Giloe plant. I hope most of you or all of you must have seen this plant. So if we'll talk about the anatomy of this plant, so it is a typical dicot plant. It is a dicot plant. Any of the dicot plant having a structure dicot stem as the outermost layer are the epidermis. The epidermis, this is the transverse section of stem. Since it is epidermis of dicot plant, so the dicot plants having hairs on their epidermis. These are the hairs. See, all the presence of the hairs on the epidermis is a characteristic feature of the roots, which are called the root hairs. Any of the plant, whether monocot as well as the dicot, both of the plants having hairs. Monocot हो चाहे dicot root हो, दोनों पे hairs होते हैं, but in the case of stem particularly, the hairs are only present in the dicot plant, not on the monocot plant. Since Tinospora cordifolia is a dicot, so the hairs are also present. After the epidermis, there is a well differentiated cortex. So this region is cortex. After the cortex, this layer is pericycle. This particular region is the cortex. After that, this layer is the pericycle. Beneath the pericycle, there presents the vascular bundle. पेरिसाइकिल के नीचे जो होते हैं वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, रिंग में अरेंज होते हैं, रिंग शेप में, लाइक दिस ऑन द पेरिफेरी.
नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम, मोनोकॉट की तरह पूरे स्टेम में स्कैटर्ड नहीं होते. सो दीज आर वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स आर द पाउच ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम. क्योंकि डायकॉट प्लांट है तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा. Why cambium is present and what are the structure of a typical dicot stem? You can refer the previous videos. This is just a quick overview. So vascular bundles में बीच में cambium present होता है. This black is cambium. We can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Approximately 10 vascular bundles हैं इसमें. The black portion is cambium. Inner to the cambium means towards the center is xylem. ये जो होता है red, this is xylem. And the primary xylem. Beneath the cambium or towards the center. We will not say beneath or downside. We will say towards the center is cambium. क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर भी हो गया है. कुछ वेस्कुलर बंडल्स जो ऐसे जो ये बंडल्स हैं इनमें जाइलम ऊपर की तरफ भी है, यानी है हमेशा सेंटर की तरफ. एंड पेरिफेरी की तरफ दिस ब्लू, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम. यहाँ पे दिस वन, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम. एंड इन द सेंटर देयर इज अ पिथ. डायकॉट स्टेम में एक वेल डिफरेंशिएटेड पिथ होता है बिकॉज वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द पेरिसाइकल एंड इन अ रिंग शेप. सो दिस इज अ टिपिकल डायकॉट स्टेम. देयर इज नो एबनॉर्मलिटी टिल नाउ. सेकेंडरी ग्रोथ जैसे ही होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ यहां नॉर्मल नहीं होती, यहां पे एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ यानी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है. And what is the abnormality? The abnormality only lies in the activity of cambium, not the position. Activity of cambium. कैम्बियम की एक्टिविटी में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ लाई करती है. दो तरह के कैम्बियम होते हैं. दिस कैम्बियम विच आई हैव ड्रॉन, इट इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर, CULAR, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो होता है जो एक बंडल में, विद इन वन बंडल, जाइलम और फ्लोएम के बीच में हो. Interfascicular cambium, the another one is interfascicular cambium. This was intra जो एक ही बंडल में है, like this is one bundle first, this is bundle 2. ये जाइलम, ये फ्लोएम. तो ये दोनों इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है. इंटर होता है जो दो बंडल्स के बीच में कैम्बियम है, जो दोनों बंडल्स को जोड़ता है, ज्वाइन कराता है, वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है. सिमिलर लाइक इंट्रा डिपार्टमेंटल एंड इंटर डिपार्टमेंटल. सो इंटर है यहाँ पे. Now I draw the inter with dark brown color. The brown that I am drawn is the interfascicular cambium. So now see, the abnormality lies in the activity of cambium. देखिए जनरली दोनों इंटर प्लस इंट्रा मिलकर, यानी इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये पूरी एक कैम्बियम रिंग बन जाती है. The dark brown portion that I am drawn is the cambium ring. इस कैम्बियम रिंग के बाहर फ्लोएम है, अगर हम देखेंगे तो ब्लू कलर प्राइमरी फ्लोएम, और इसके अंदर प्राइमरी जाइलम है. तो सेकेंडरी ग्रोथ में नॉर्मल में तो ये क्या करते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बना देते हैं. बट यहाँ पे जो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये जो आपका पूरा कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटर प्लस इंट्रा को मिलाकर, ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली इस रीजन में जहां पे ओनली इंटर है, यानी दो बंडल्स के बीच में, जहां पे ये इंटर है दो बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम है, यहां पे ये ना तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है अपर साइड में और ना सेकेंडरी जाइलम बनाता है डाउन साइड में. नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती कि ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी, पहले तो ध्यान से समझना है, अगेन रिपीटिंग, इंटर कौन सा है दो बंडल्स के बीच में, और इंट्रा कौन सा है जो जाइलम फ्लोएम के बीच में एक ही बंडल में. तो जो इंटर वाला है दो बंडल्स के बीच में, ये अगर नॉर्मल एक्टिविटी करता तो ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पैरेनकाइमा बनाता है. पैरेनकाइमा दो बंडल्स के बीच में, यानी सेकेंडरी फ्लोएम के प्लेस पे भी और सेकेंडरी जाइलम के प्लेस पे भी ये पैरेनकाइमा बना रहा है. दिस इज द फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी. ओके, लेट मी राइट इट ओवर देयर ऑन द नेक्स्ट पेज.
First abnormality is what? The interfascicular cambium is forming parenchyma instead of secondary phloem and xylem. Now what is the second abnormality? Second abnormality है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, ठीक है, यानी एक ही मंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है, ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, यानी ये भी सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम पूरी तरह से नहीं बना रहा। ये क्या करता है, जहां सेकेंडरी जाइलम बनना था वहां सेकेंडरी जाइलम पैचेस में बनाता है, क्रैक्स की फॉर्म में, टुकड़ों में, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज कैम्बियम, इसे सेकेंडरी जाइलम बनाना था, ठीक है। तो यहां सेकेंडरी जाइलम में देखिए ये रेड रेड ये क्रैक्स हैं, पूरा सर्कुलर नहीं बन रहा, क्रैक्स की फॉर्म में बन रहा है। ऐसे ही सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम में ब्लू ब्लैक से दिखा देता हूं, ये ब्लैक है, दिस इज कैम्बियम। अंदर जो ये सारा टिश्यू है दिस वन, इन रेड पैचेस को छोड़ के ये सेकेंडरी जाइलम बनना था और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनना था। बट सेकेंडरी फ्लोएम में और जाइलम में, फ्लोएम में भी मैं रेड से पैचेस दिखा देता हूं, कुछ पैचेस छोड़ देता है ये। इंटर वाला, इंटर वाला तो प्योरली पैरेन्काइमा बना रहा है, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बना ही नहीं रहा, ये एबनॉर्मलिटी है, जबकि इसको नॉर्मली सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाना चाहिए था। इवन इंटर वाला भी, इंट्रा वाला, सॉरी दिस इज इंट्रा, इंटर की तो हम बात कर चुके, दो बंडल्स के बीच में जो था वो पैरेन्काइमा बना रहा है। और इंट्रा वाला भी जो है सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम कंटिन्यूस नहीं बना रहा, उसमें बीच बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं, ये जो रेड है ये ब्रेक है, इन्हें फिशर्ड बोलते हैं, फिशर्ड जाइलम या फिशर्ड फ्लोएम, ओके। इनकी वजह से कंटिन्यूस सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बन पा रहे, इनमें भी क्या आ रहा है, मिसमैच आ रहा है, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये दो एबनॉर्मलिटी होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। अब एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे देन वी विल सी कि लेस नंबर ऑफ बंडल्स बनते हैं, लेस नंबर ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं। देखिए सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बहुत ज्यादा बनना चाहिए था, क्यों बनना चाहिए था, क्योंकि इंटर को भी सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाना चाहिए था, लेकिन वो बना नहीं रहा, तो अमाउंट यही कम हो गई। दूसरा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बना ही रहा है, लेकिन वो भी बीच बीच में ये पैचेस बना रहा है, एबनॉर्मल पैचेस, यानी वहां पे भी कमी आ रही है। तो अल्टीमेटली लेस नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, यानी लेस नंबर ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का अडेप्टेशन है। देखिए ये बेनिफिशियल है, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना, इस तरह की एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, वो उसको वुडी नहीं बनाना चाहती, सेकेंडरी जाइलम वुड बनाता है, जबकि गिलोय हम जानते हैं क्लाइंबर एक बेल है, तो वो वुडी नहीं होती, ऑल्दो स्लाइटली वुडी है, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ तो हो रही है, बट नॉट वुडी लाइक पर्टिकुलरली कमर्शियल वुड, ठीक है, उसको हम लकड़ी की तरह जलाने के लिए यूज नहीं करते। तो ये एक अडेप्टिव या अडेप्टेशन है, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये अडेप्टेशन के लिए हुई है, कि वो क्लाइंबर्स हैं वो क्लाइंब कर सके, इसके लिए इस तरह की सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। एक्सट्रीमली जो वेदर होते हैं, बहुत तेज तूफान अगर चलते हैं, बहुत तेज हवाएं हैं, तो उसमें वो फ्लेक्सिबल रह सके। अगर बहुत ज्यादा हार्ड होती तो गिलोय फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि ज्यादा पेरेन्काइमा प्रोड्यूस हो रही है, more parenchyma is producing, that's why it is also flexible in the extreme conditions। तो ये सारी चीजें जो है अडेप्टेशन के लिए इस तरह की सेकेंडरी ग्रोथ। और दो एबनॉर्मेलिटी है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पेरेन्काइमा बनाता है जाइलम फ्लोएम की जगह, यानी जो दो बंडल्स के बीच में था, और दूसरी एबनॉर्मेलिटी है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी लेस अमाउंट ऑफ जाइलम फ्लोएम बना रहा है, ऑल्दो बना तो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम ही रहा है, लेकिन लेस अमाउंट में, वी शेप में जाइलम फ्लोएम बनते हैं, वी शेप में। नाउ वी विल सी द डायग्राम ऑफ द एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। This was the epidermis.
This is cortex. This layer is pericycle. We are only giving a representation of the secondary growth. Although epidermis और pericycle भी जो है वो rupture हो जाएंगे, यहाँ पे cork cambium बनेगा. Now we will see कि vascular bundles किस तरह से दिखाई देंगे secondary growth के बाद. So this was the bundle. This is the another bundle. यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम था. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में पैरेनकाइमा फॉर्म हो चुकी है, यानी दो बंडल्स के बीच में. दिस ब्लू इज पैरेनकाइमा. क्योंकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ने पैरेनकाइमा ऐड करी, ना कि सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम. तो देखिए बंडल्स तो बहुत कम है, जबकि पैरेनकाइमा टिश्यू बहुत ज्यादा बन चुका है, यानी प्लांट जो है वो सॉफ्ट भी और फ्लेक्सिबल भी है. दिस इज पैरेनकाइमा. सेकेंड थिंग, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी, यानी जो बंडल्स के बीच में था, उसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूं. दिस ब्लैक. और इंटर को हम रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये इंटर फेसिकुलर कैम्बियम है, ये ब्लैक वाला इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है. तो ब्लैक वाले ने भी क्या किया कि जो सेकेंडरी जाइलम बनना था, लाइक मैं ये दिखाता हूं वी शेप. दिस इज सेकेंडरी जाइलम. ये पूरा कंटिन्यूअस बनना था इस तरह से, बट ये इस तरह से बना नहीं है. ये बना कैसे एक्चुअली? इस तरह से वी शेप. क्योंकि थोड़ा यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बन रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, जिसे येलो से मैं मार्क कर रहा हूं. इसमें सेकेंडरी जाइलम ना बनकर यहाँ सेकेंडरी मेडुलरी रेज बन रही हैं, या यहाँ भी पैरेनकाइमा बन रही है जाइलम के प्लेस पे. बाहर तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के प्लेस पे देखिए ये ब्लू वाली पैरेनकाइमा बन रही थी. एबनॉर्मलिटी वहां तो बिल्कुल सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बन रहा. अंदर भी कुछ प्लेस घेर लिया किसने? पैरेनकाइमा ने, क्योंकि जाइलम कंटिन्यूअस नहीं बन पा रहा. ऐसे ही ऊपर ब्लू फ्लोएम पूरा कंटिन्यूअस बनना था, पर वो कंटिन्यूअस नहीं बनकर वी शेप बन रहा है, क्योंकि वहां भी थोड़ा थोड़ा क्या बन रही है? पैरेनकाइमा. तो देखिए इस तरह के बंडल्स दिखाई देते हैं. इन्हें फिशर्ड बंडल्स बोलते हैं, क्रैक वाले या फिशर्ड बंडल्स. फिशर्ड का मतलब जिनमें ओपनिंग्स है, जिनमें क्रैक्स हैं, इस तरह के बंडल बनते हैं. तो इसकी वजह से देखिए लेस नंबर ऑफ वेस्कुलर टिश्यू है, मोर नंबर ऑफ पैरेनकाइमा है. बाकी सब सेम है, ये पिथ रहेगा. बस सेकेंडरी ग्रोथ का जो पैटर्न है उसमें कैम्बियम की एक्टिविटी में चेंज आ गया. चेंज इन कैम्बियम एक्टिविटी, which we have already discussed. So the secondary growth structure of the tinospora will be like this, that there will be less number of vascular tissues. Okay, in the bundles the secondary xylem and phloem itself will be V shape. Okay, so these are the abnormalities in the tinospora plant. So this was all about the tinospora or the Giloy plant. That's all for today. Have a nice day. Thank you for watching the video. Please subscribe, like and share the channel.